ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਾਚੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ, ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਪੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੱਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਤੂੰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਪਿਆ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੰਢਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।
सतगुरु कह लगे जे धर्म के चिन्ह पा के भी तू माड़ियां आदतां नहीं छड्डनियां ते भलिया एक गल दस, तेरे पाए हुए धागे दा, पाए हुए जनेऊ नाते धोते दा लाभ की है। वो असी सतगुरां दा बचन साझा कीता सी, हिंदू कह कर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावै। कहंदे पढ़ के जिहड़ा मंत्रां नूं पढ़ के उहदे गल दे विच धागे दा सूत्र तां वट के जनेऊ पाया जांदा है। हिंदू कह कर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। कहंदे गल च धागा पाया, थां थां ते बुरियाई करदा पिया है, थां थां ते औगण जिहड़े ने वो खिलारदा पिया है। नाता धोता थाएं ना पाई, याद रखी तेरे तन दा पाया होया लिबास किसे थां दे उत्ते नहीं, किसे फली भूत नहीं होना। तो मैं ये विचार तां गुरमुखों रोकी सी राती। याद रखियो, जे सिख दे अंदरों भी सिद्धांत उठ गया, जे सिख दे अंदरों भी उच्चा सुच्चा जीवन खत्म हो गया, मैनू माफ़ करना, ये पाए हुए गल दे विच किरपाना गातरियां दा भी कोई मगर लाभ नहीं रह जाएगा। एक मैं उदाहरण सतगुरां दी अमृत बाणी चों दे के फिर इतिहास वाल आवां, क्योंकि कई बारी साडा मन ना जो दूसरे की निंदिया होंदी है तो फिर बड़ा खुश हुंदा है। क्यों गुरबाणी दे विच हिंदू की गल है, मुसलमान ते जोगी की गल है, सिख धर्म उदों आरंभ हो रहा है। तो सुभावक है सतगुरां ने जिहड़े धर्म चल रहे हैं उन्हां दीयां उदाहरणां दित्तियां ने। उन्हां दीयां उदाहरणां हीनता भावना च नहीं, ईरखा वस नहीं, द्वै भावना नूं नहीं, वो इस करके दित्तियां ने भलिया जे अज तू हिंदू हो के मुसलमान जोगी हो के पा के तन दे धर्म दे भेख, जे तन दा पहरावा पा के भेख धार के औगण भुगतदा पिया है, औगण करदा पिया है, ते किसे फले भूत नहीं। ये उपदेश सिख दे लई भी है। तू गुरु दा बाणा पा के जे जीवन नूं सुधारिया नहीं तो तेरा ये भी किसी लेखे विच नहीं लगना। चलो एक गुरु नानक साहब जी का श्लोक साझा कर लीए। आसा की वार च गांह जाके श्लोक आना है। सतगुरुआं ने उत्थे भी उदाहरण एक पंडित की दित्ती है। कह लगे पंडित की करदा है कि वो नहा धो के इशनान करके मंदिर दे विच आउंदा है, आण के संध्या वेले वो संध्या का जिहड़ा पाठ पूजा किया जाता है। कई तरह के कर्म कांड किए जाते हैं, तिलक लाए जाते हैं, दो धोतियां कोल रखियां ने, एक तौलिया सिर ढकण वास्ते रखिया है। लोगों के नाल विचार चर्चा करता है। ज्ञानी हो के पंडित हो के कह लगे जो वो झूठ बोलता है ना, हुण विद्वान कोल शब्द बड़े होंदे ने, कहते जो वो झूठ बोलता, झूठ इन्ना क प्यार दे नाल इन्ना क सवार के बोलता जिवें एक सुनियार वीर गहणियां नूं शिंगारदा होवे। कहते तेरा बोलिया होया झूठ भी गहणियां दे वांग जापदा है। भलिया जे तू वाकई ब्रह्म नूं पछाणदा है तो ये गल मन च पक्की धार ला, तेरे कीते हुए कर्म कांड सारे फोकट ने जे अंदरों परमात्मा का सिद्धांत उड गया। वो असी पावन बचन पढ़ते हैं, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग। ये अर्थ चलो गांह आने ने, आप डिटेल के नाल वाचांगे। कहते तू धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के संध्या करदा है, शाम की ड्यूटी अर्ज करदा है, पाठ पूजा करदा है, बादंग का अर्थ विचार चर्चा करदा है। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूज सबगल समादंग, मुख झूठ विभूखण सारंग, गल माला तिलक लिलाटंग। कह लगे मुख झूठ विभूखण सारंग, त्रै पाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलक लिलाटंग, दोए धोती बस्तर कपाटंग। जे जानस ब्राह्मण कर्मंग, जे तेन ब्रह्म की पछाण हो जाए, ब्रह्म कर्म का तेन पता लग जाए तो ये निश्चय करके जान लवे सब निश्चौ फोकट कर्मन, जो तू कर्म करदा पिया ये सारे का सारा फोकट है। फिर फलीभूत की होएगा? सतगुर कह लगे कहो नानक जो निश्चौ ते आवे। कहते फलीभूत वो है जिहड़ा निश्चा रख के भावना रख के परमात्मा का नाम जपदा है। पर परमात्मा का नाम जिहड़ा बिन सतगुर वाट ना पावे, गुरु तो बिना जपिया कोई नहीं जाना। मेरे कहण दा भाव जिन्ना चिर इत्थे अज गुरु नानक साहब बख्शिश करते हैं, नानक सच्चे नाम बिन, जे तेरे अंदर नाम नहीं, जे तेरा अंदर परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया तो तेरे पाए हुए तन के जिहड़े ककार ने, पाए हुए तन का जिहड़ा पहरावा है ये भी एक वार जिहड़ा भेख बन के रह जाएगा, कर्म कांड बन के रह जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं। इत्थे मैं एक बेनती कर देवां, मेरे कहण दा भाव ये बिल्कुल नहीं कि धार्मिक चिन्ह सिख ने पाउणे नहीं, चिन्ह जरूरी ने। देखो साडा समाज चिन्हां दे नाल चलदा है। मैं अक्सर उदाहरण देना, तुसी सफ़र पे करदे जे गड्डी दे विच, सामने रैड लाइट आउंदी है, उत्थे किसी ने कुछ लिखिया तो नहीं ना, वो एक चिन्ह है कि रैड लाइट आई है, भलिया तू इत्थे रुक जा। ग्रीन लाइट आउंदी है, ये भी एक चिन्ह है। जे असी अपने दिल दे अपने अंदर दे हाव भाव किसी नाल सांझे करते हैं
ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਦਾ, ABC ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਾ ਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਾਪ ਜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਵੀਂ, ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ SP ਜਾਂ DSP ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਜਾਂ DSP ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਵਰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਫੜੋ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੱਲ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਦਾ ਚਰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਤੇ ਹਿਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਣਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जिस वे खोता हिणकिया उस घुमियार ने पछाण लिया, कहता ये तो मेरा खोता जिहड़ा पिछले दिनी चोरी हो गया सी। उन्हें फड़ के 2 डांगा उहदे धौन च मारियां, फड़ के ते उहनूं अपने काबू दे विच कर लिया। सिखां नूं पता लगा, सिखां ने शेर दी खल जिहड़ी सी खोते तो ला के मोढे ते टंग के तुरे आउण ते नाले हੱਸदे आउण। पिंड वाले इकट्ठे हो गए आगे, आण के सतगुरां नूं कहण लगे, सतगुरु जी ये कौतुक तुसीं वरताया सी। सतगुरु कहण लगे, हाँ सिखो ये कौतुक मैं वरताया सी। सतगुरु कहण लगे, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਸੁੱਕਣੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सतगुरु कह लगे, खोते के उत्ते शेर की खल पाई कि शेर की खल पाउण दे नाल खोते ने हिणकना बंद कर दिता, कि उन्हें मिट्टी च लेटना बंद कर दिता, कि उन्हें अपने जिहड़ा खुराक नूं तब्दील कर लिया। कह लगे जिवें खोते दे तन ते पाई होई खल किसे फली भूत नहीं हुंदी, जिन्ना चिर सिद्धांत कोल ना होवे। सिखो तुहाडे तन दे उत्ते मैं अज ककार पाए ने, जे तुसीं कर्म कांडां नूं छड्ड के परमात्मा दे नाम दे नाल ना जुड़े रहना, तुसीं भी खोते दे खोते जी, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पवेगा। तुहाडा विहाल भी इसे खोते दे उत्ते शेर दी खल वर्गा होवेगा। सो मेरे कहण दा भाव, सतगुरां ने यह सानूं सिद्धांत दिता। अज किते असीं अपने जीवन च वेखीए, साडे तन दे उत्ते खोते दे उत्ते शेर दी खल वाली गलत नहीं। अज साडे तन दे उत्ते धर्म दे चिन्ह ने, धर्म दा पहरावा है, पर अंदर किते ना किते कर्म कांड उहिओ लुके होए ने, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੱਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨਕ सच्चे नाम बिन, कहते उस मालक सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम तो बिना जे तू परमात्मा का नाम नहीं जपदा, क्या टिक्का क्या तग तेरे तन दे उत्ते पाया होया, टिक्का लाया होया, टिक्का ते पाया होया धागा किसी भी फली भूत नहीं, मैनू दस किहड़े काम आवेगा। तो मैं अपने आप नूं सवाल करा मना, जे तू गुरु की बाणी नहीं पढ़दा, जे तू उठ के नाम नहीं जपदा, जे तू गुरु दे सिद्धांत दे अनुसार ही होके नहीं चलदा, तो तेरे तन का पाया होया पहरावा गुरु तैनूं भी आखेगा मैं दस इहदा फायदा की है। सो ये पहले भी श्लोक की विचार सी, जिहदा भाव इहो निकलदा है कि जिन्ना चिर मनुख अंदरों नाम तो टुटिया रहेगा, उहदे तन दे उत्ते पाए होए भेख नूं, पाए होए पहरावे नूं किते थां नहीं है। मैं राती भी कहा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भेख नूं कोई थां नहीं दित्ती, जिन्ना चिर सिद्धांत नहीं उन्ना चिर ये बाहरी चिन्ह किते भी प्रवान नहीं किए जाते। सो अगले श्लोक दे विच सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। महला पहला, सतगुरु कह लगे लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान। कह लगे मनुख लखां ही नेकियां करदा है, वो काहदे वास्ते कीतियां जांदियां ने? नेकियां दा अर्थ है जी चंगे कर्म, चंगियाइयां तां जो मैं चंगियाई खट सका, मैं चंगे कर्म कर सका। नेकी ते चंगियाई का अर्थ सेम होवेगा। लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना, कई तरह के पुण्य करदा है। परवान, परवान का अर्थ है कबूल होना। इत्थे मनुख परमात्मा नहीं लोगों की निगाह दे विच प्रवान हो जाते कि बल्ले बल्ले ये नाल दा दानी कोई नहीं, ये वर्गा नेक पुरुष कोई नहीं। ये जिहड़ा श्लोक है याद रखियो, ये श्लोक की जिहड़ी विचार आप इत्थों शुरू करांगे। नानक मती मिथ्या, ये 2 शब्दों को ध्यान च रखियो। ये तेरी मत दे मिथे होए ने, ये गुरु की मत दे नहीं। मैं ये तां श्लोक पढ़ के शुरुआत करती, सानू ये भुलेखा निकल जाए। पहली तो गल वख करना सी कि ये श्लोक 2 ने। ये जिहड़ा दूसरा श्लोक है लख नेकियां चंगियाइयां वाला, ये इस पंक्ति नूं आधार बनावांगे। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान, कर्म कहते ने बख्शिश नूं, निशान का अर्थ है निशानी। कह लगे जे तेरे मत्थे दे उत्ते सच्चे परमात्मा की निशानी नहीं लगती, भाव तू परमात्मा के दर ते प्रवान नहीं हुंदा। जिहड़े आ तू कर्म करदा पिया ये तेरी मत दे ने, इनू गुरु की मत दे विच प्रवान ना समझी। हुण वो किहड़े किहड़े कर्म ने?
सतगुरु जी उत्ते बख्शिश करते हैं, कह लगे लख नेकियां, ये मैं हुणे अर्थ कीते भले कर्म। कई बारी मनुख दुनिया दे विच बड़े भले कर्म करता है, तो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का एक बड़ा प्यारा फैसला है, कह लगे इहदा सुभाव है कि मैं भला कर्म करके लोगों के सामने भलाई खट सका, चंगा बन सका। हुंदा की है, कह लगे आपस को जो भला कहावै, कहाउंदा अपने आप नूं भला है, मैं बड़ा चंगा, अपने गुण गुण गिण गिण के दसेगा तो सह भलाई निकट ना आवे। कहंदे पर सच्ची गल उहदे अंदर दया नहीं, लोकां सामने पेश करेगा मेरे नाल दा दयालु कोई नहीं, मेरे नाल दा चंगा मनुख कोई नहीं, पर अंदर छल ते अंदर कपट लुकिया होया है। मैं पहलां ही बेनती कर दी गुरमुखो, इस श्लोक नूं आरंभ तो पहलां वाचन तो पहलां ये गल ध्यान च रखियो, नानक मती मिथ्या, ये मेरी मत है, ये गुरु दे चर ते ये चीज़ां प्रवान नहीं। ਇਹਦਾ दूसरा अर्थ ये ना करियो कि असी शुभ कर्म नहीं करने, क्योंकि ਜਿਹੜੇ श्लोक 'ਚ ਇਹ कर्म ने ना, ये सारे शुभ कर्म ने, सारे चंगे कर्म ने, पर इन्हां चंगे कर्मां दे नाल एक गल स्पष्ट है कि तू परमात्मा दे दर ते प्रवान नहीं होना। मैं बड़ी बारी बेनती की है, एक मन चों अपने भुलेखा बिल्कुल कढ़ दिओ। ਜਿਹੜੇ मैं कर्म करदा हाँ, चंगे कर्म करदा हाँ, शायद इन्हां नाल रब मिल जाएगा। चंगे कर्म कर, ये तेरे चंगे इंसान होने की निशानी है। चंगे कर्म कर, ये तेरे धर्मी होने की निशानी है। पर याद रखी, जे मालक वाला, जे तू खसम वाला बनना, जे परमात्मा दे विच अभेदता हासिल करनी है, तो वो वास्ते तेनू नाम जपना ही पवेगा। असी सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का अमृत बचन भी पढ़ते, कह लगे मनुख चंगे कर्म करता है ना, उहदे नाल की हुंदा है, जिहो जे तुसीं कर्म करोगे उहो जिहा तुहानूं फल मिलता जाता है। एक मनुख बुरा कर्म करता है, ਉਹਦੇ फल ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ नतीजे बुरे तो बुरे भुगतने ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ फल ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, परमात्मा ने रहमत करके तेनों फिर मनुखा जीवन दे दिता। ये चंगे कर्मां दा फल सी। वैसे जे तू मंदे कर्म करके चढ़ाई करे तो किसी खोते गधे की जून च पएगा, पशु जानवर की जून च पएगा। चंगे कर्मां दे नाल मनुखा जून तो मिल सकती है, पर जे तू बख्शिश चाहना है, जे तू मुक्ति चाहना है तो वह परमात्मा की रहमत दे विचों मिलनी। वो असीं बचन पढ़ते हैं जी, कर्मी आवे कपड़ा। कर्मी का अर्थ कर्मां दे नाल, कहते कर्मां दे नाल आ शरीरक रूपी चोला तो तैनूं नवां मिल सकता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी, मुख द्वार परमात्मा की नदर बख्शिश ही तैनूं मुक्ति दे तक खड़ सकती है, तेरे कर्म नहीं खड़ सकते। जिन्हों गुरु अर्जुन साहब का एक बड़ा प्यारा बचन है, मैं इत्ते बोलना चाहुंदा कि नानक मती मिथ्या, ये मेरी मत दे ने। सतगुरु कह लगे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे। इस समुची अष्टपदी च इहो जिक्र किया होया है। पाठ मनुख बड़े पाठ धर्म दे करदा, चंगी गल करने चाहिए ने। पर मैं पिछले दिनी जिस वेले जिक्र आया सी ना कि मनुख परमात्मा का नाम जपे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे, तो शब्द की कहंदा कि तू परमात्मा का नाम जप। जे शब्द पढ़ के भी तू परमात्मा का नाम नहीं जपदा, तेरी सुरत उरे टिकी रह गई, अड़ी रह गई, याद रखी ये भी एक मोह जंजाल का कारण बन जाएगा। मस्कीन जी ने तो इत्थों तक कहा सी, थोड़ा जिहा हिरदा विशाल करके सुनियो। कहन लगे मनुख दे लई हर एक चीज़ बंधन है। माया दे बंधन ने, संसार दे बंधन ने, घर दे बंधन ने ते परिवार दे बंधन ने। मनुख इन्हां चीज़ों छड्ड के किसी वेले गुरु दे कोल आ जांदा है। इनू ध्यान नाल सुनियो मेरी बेनती नूं। तू सारा कुछ छड्ड के गुरु दे कोल आ गया, गुरु दे कोल नाम जपना सी परमात्मा दा। जे तू केवल ते केवल गुरु तक ही सीमित रह गया तो मस्कीन जी कहते सन गुरु भी एक बंधन बन जाएगा तेरे ते परमात्मा दे दरम्यान। ये कहना बड़ा औखा है, क्योंकि गुरु आप नारायण कला धार जग में परवारियो है। पर याद रखियो सिख ने गुरु दे राही परमात्मा तक पहुँचना है। सो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, पाठ पढ़ियो, कहते बड़े धर्म के पाठ किए, और वेद विचारियो, बड़े धार्मिक ग्रंथों की विचार की, निवल भयंगम साधे, बड़े उल्टे सुलटे निवली कर्म भी किए। कह लगे पंच जना सो संग ना छुटक्यो अदक अहम बुद्ध बाधे। याद रखियो इन्हां गिनतियां मिनतियां ने तुहाडे अंदर दी मैल नहीं धोनी, ਉਹਦੇ वास्ते तुहानूं नाम ही जपना पैना है। सतगुरु कह लगे पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटक्यो अदक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई। जिहड़े तू कहना है ना नानक मती मिथ्या, इन्हां दे नाल रब नहीं मिलिया जाना।
रब तक नहीं पहुँच सकता। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं कीए कर्म अनेका, की करा हार परियो स्वामी कै द्वारे दीजे बुध बबेका। मैनू वो मत दे दे जिहदे नाल मैं तेरा नाम जप सका। सो सतगुरु इत्थे बख्शिश करते हैं। वो किहड़े कर्म ने जिन्हां नाल रब नहीं मिलिया जाना। कहंदे लख नेकियां चंगियाइयां। हर मनुख के अंदर एक किते ना किते नेकी का सुभाव टिकिया हुंदा है। बड़ी चंगी गल नेक मनुख होना, पर नेक होना ये कोई भी तुहाडे कोल फट्टा नहीं हैगा कि तुसी नेक बन के ते परमात्मा के दर ते प्रवान हो जाओगे। बड़े बड़े लोग नेक तुरे फिरदे ने, बड़े बड़े नास्तिक जिहड़े लोग ने वो नेक हुंदे ने, भलाई करते हैं, समाज सुधारक काम करते हैं। कई मनुख समाज सुधारक नाम ते भी जाने जाते हैं। सतगुरु कहंदे वो समाज सुधारक तो हो सकते हैं, पर रब दे विच अभेद नहीं। लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना प्रवान। कई तरह के पुन्न कीते, गरीबां नूं दान दिता, भुखे दे मूँह दे विच रोटी पाई, नंगे नूं कपड़ा दिता। हर तरह की सहूलत जिहड़ी सी जिथों तक हो सके लोगों के लिए तू भलाई दे कर्म कीते, कई तरह के पुन्न कीते। कहण लगे प्रवान, प्रवान का अर्थ इन्ने क ज़्यादा पुन्न कीते कि लोगों ने तेनों प्रवान कर लिया कि ये नाल दा धर्मी मनुख ही कोई नहीं। कई बंदे ने 80 नाम पाए होंदे ने, ये नहीं जी ये तो बंदा ही निरा रब है, ये नाल दा बंदा ही कोई नहीं। जिहड़ा मनुख साडी भलाई दे कर्म करदा है साडे वास्ते, ਉਹਦੇ वास्ते असी कई तरह के विशेषण ला देने आ। सतगुरु कहणगे तू लोगों की निगाह च प्रवान हो जाएगा, पर परमात्मा की निगाह दे विच नहीं। लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना प्रवान। प्रवान का अर्थ लोगों की निगाह च प्रवान हो गया, मेरी निगाह च नहीं। सतगुरु कहणगे प्रवान हो गया। लख तप ती उपर तीर्थां। हुण कई लोग तीर्थां दे उत्ते जाके बड़े बड़े तप पे करते हैं, बड़े बड़े तप साधे जाते हैं। ये अपने अंदर झाती मारियो, असीं भी इहो कुछ ही करते हैं। फलानी थां दे उत्ते इन्ने पाठ करा दिओ, इहदे इन्ने सुखमनी साहब करा दिओ, इन्ने खंड पाठ करा दिओ। सतगुरु कहंदे कराई जा। लख तप उपर तीर्थां, तीर्थां ते जाके कीते होए तप। सहज जोग बेबान। ये बेबान जिहड़ा ये दो अर्थां च तकरीबन हुंदा है। एक बेबान का अर्थ है जिहदे उत्ते जीव आत्मा जांदी, ये जहाज की टाइप का शेप का हुंदा है, गुरबाणी च इहदा भी जिक्र है। एक विभान का अर्थ है जी जंगल, इत्थे अर्थ करांगे जंगल। दो तरह के योग हुंदे ने, एक सहज योग हुंदा है, एक हठ योग हुंदा है। सहज योग दे विच की हुंदा है कि मनुख सधारण तरीके दे नाल, इत्थे आ शब्द है सहज योग बेबान। सहज योग च की हुंदा है कि मनुख सधारण तरीके दे नाल चौंकड़ा मार के अपने मन नूं टिका के ते परमात्मा दा नाम जपदा है, समाधि लाउंदा है। इहनूं सहज कहिंदे ने। हठ योग हुंदा है जिहदे विच जिवें तप साध ले, गर्मी दे विच धूणियां ला के विच पै गए, शरीर नूं होर तपाया। सियाल दे विच ठरे पानी दे विच बह के शरीर नूं कष्ट दिते। अपने केस जिहड़े ने कदी रुखां दे नाल बन ले, कदी पुट्ठा लटक गया, कदी एक लत्त ते खलो गया, कदी एक बांह तां करके खलो गया। इदां दे जिहड़े कर्म ने शरीर नूं कष्ट देण वाले, उहनूं हठ योग कहा है। सतगुरु कहण लगे मनुख की करे कि लख तप उपर तीर्थां। लखां ही तीर्थां दे उत्ते जाके लखां ही तप साधे जाण। सहज योग बेबान, ते जंगलां दे विच जाके सहज योग कमाया जावे। परमात्मा दे विच सुरत जोड़न दा हीया कीता जावे। अगे कहणगे लख सूरतन संग्राम, रन मह छुटै प्राण। इहदा ध्यान रखियो, प्राण ते अगे शब्द एक पुराण भी आउणा औंकड़ नाल। कहण लगे सूरतन दा अर्थ करांगे सूरमे। संग्राम का अर्थ हुंदा है भखदा होया रण का मैदान, जिहदे विच लोहे दे नाल लोहा लिया जा रहा है। कहण लगे लखां ही सूरमे रण दे विच लोहे दे नाल लोहा लैंदे पए ने, तलवारां दे नाल तलवारां खड़कदियां पईयां ने। लख सूरतन संग्राम, ते लड़दियां लड़दियां रण मह छुटै प्राण। प्राण का अर्थ करांगे सुवास। कहंदे वो लड़दे लड़दे अपने देश के बदले, अपनी कौम के बदले, अपने फिरके दे बदले, अपने हक्कां दे बदले अपनी जान गवा गए। समाज ने शहीद कह के कह दिता, वो रब की दरगाह पहुँच गए। सतगुरु कहते मेरे तक वो भी नहीं पहुँचे। असीं पिछले समय पाया सी ना इदां दा रौला। चलो मैं ये गल वाल ज़्यादा नहीं आना चाहुंदा। सतगुरु कहणगे इदां मनुख प्रवान नहीं हुंदा। ये चंगी गल है कौम दे लई, चंगी गल है धर्म दे लई, समाज दे लई आपां कुर्बान कर देना। कुर्बानी ते तेरी गिनी जा सकदी है, ये शुभ कर्म ते हो सकदा है, पर इहदे नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं। लख सूरतन संग्राम, रण मह छुटै प्राण। कहंदे लखां ही सूरमे भखदे होए जंग दे मैदान दे विच आपां कुर्बान पे करदे ने। लख सुरती, लख ज्ञान ध्यान, पढ़ियां पाठ पुराण।
इत्थे स्पैलिंग उहिओ ने, पप्पा रारा ते नाना, सिर्फ औंकड़ का फर्क है। उत्ते आया जी पप्पा रारे नूं कन्ना ते नाना, वो है प्राण, उसका अर्थ है जिंद श्वास। इत्थे शब्द है पुराण, पप्पे नूं औंकड़, रारे कन्ना ते नाना, इसका अर्थ हो जाएगा धार्मिक पवित्र किताब जिन्हों वेद पुराण कहा जाता है। 18 पुराण ने हिंदू मत के। हुण इन्हां नूं इत्थे एक गल समझ च आउंदी है कि बाणी नूं जदों पढ़ना है निक्की निक्की गल का ध्यान रखना, जी एक औंकड़ लग गया वाधू तो याद रखियो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। औंकड़ ला के पाठ करोगे, पुराण का अर्थ है जिंद, ला के अर्थ करोगे पुराण, इसका अर्थ है वो धार्मिक ग्रंथ जिन्हां दे बारे मनुख नूं सिक्ख्या दित्ती जाती है। सतगुरु कह लगे लख सुरती, कहते लखा ही तू सुरत नूं टिकाउण दे जिहड़े ने वो साधन करी जा। सुरत टिकाउण दे भी वक्खो वक्ख तरीके ने, योग मत कुछ दसदा है, कोई मत कुछ दसदा। लख सुरती, लख ज्ञान ध्यान, कई तरह के ज्ञान घोटे जाते हैं धर्म के नाँ के उत्ते, कई तरह के ध्यान ने जिहड़ा मनुख लाउण दा यतन करदा है। पढ़ियां पाठ पुराण, कई तरह के धार्मिक ग्रंथों के पुराणा आदਿਕ के जिहड़े पाठ किए जा रहे हैं। सतगुरु जी अगे बख्शिश करते हैं। देखो इतों तक जिन्ने भी कर्म ने ये सारे के सारे पुण्य के कर्म हो गए हैं। मैं फिर एक बार गिना दा, बाकी गल आपां कल सांझी करांगे। कह लगे तू नेकियां च करदा है, चंगियाइयां करदा है, पुण्य करदा है, तप करदा है, सहज योग करदा है, रण के मैदान दे विच शहीद हो जाना है, तू सुरत टिकाउणा, तू ध्यान लाउणा है, तू ज्ञानी बन के ज्ञान के नाल रब नूं लभण दा यतन करदा है, तू धार्मिक ग्रंथां दा पाठ पुराण करदा है। एक गल याद रखी, जिन करतै करना किया लिखिया आवन जान होना, वही है जो परमात्मा ने लिख दिता, उहदे हुक्म दे नाल ही मनुख आउंदा ते उहदे हुक्म दे नाल ही जांदा है। जिन करतै, जिस करनहार उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने, करतै दा अर्थ है परमात्मा, करना, करना दा अर्थ करांगे संसार, किया दा अर्थ है पैदा किया। जिस परमात्मा ने संसार नूं पैदा किया है ना, याद रखी लिखिया आवन जान, उन्हें आउण ते जाण दा समा, आउण ते जाण दा राह, आउण ते जाण दा तरीका मनुख दा लिख के रखिया होया है। एक गल चेता रखी, नानक मती मिथ्या, ये जिन्ने उत्ते कर्म ने ये तेरी मत दे मिथे होए ने। कर्म सच्चा निशान, जे तू बख्शिश दा पात्र बनना सी, वो परमात्मा दा नाम सी। परमात्मा दे नाम दे नाल जे तेरे मत्थे दे उत्ते निशान नहीं पैंदा, भाव तेरे जीवन दे विच परमात्मा दा नाम नहीं आउंदा, ते ये जिन्ने भी कर्म ने सारे दे सारे तेरी अपने मत दे मिथे होए ने। इन्हां कर्मां दे नाल तू परमात्मा तक नहीं पहुँच सकदा। नानक मती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान, इहदा भाव ये निकलदा है गुरमुखो, असीं जिन्ने मर्जी कर्म चंगे करिए, इहदा अर्थ ये ना कढ लिओ कि चंगे कर्म नहीं करने। करो, रज के करो, भलाई करो, नेकी करो, दया करो, पर एक गल याद रखियो, बख्शिश दे नाल परमात्मा की रहमत दे नाल ही परमात्मा की जिहड़ी वो गोद नसीब होनी है। इन्हां कर्मां दे नाल परमात्मा नहीं मिलता। इहदी पंक्ति की आखिरी विचार आपां कल करके नाल पौड़ी नूं सांझिया करांगे कि नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान, किवें कर्म जिहड़ा वो निशान बन के ते मनुख नूं परमात्मा दे घर तक पहुँचाउंदा। इहदी विचार कल नूं समय की समाप्ति, होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। जिन करतै करना किया, लिखिया आवन जाना, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की